नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले ट्राई सिटी की खास खबरों पर एक नजर। बिल्डिंग वायलेशन एक्ट के बदलाव को लेकर चंडीगढ़ व्यापार मंडल ने दर्ज करवाई आपत्तियां। कहा जरूरत के अनुसार बदलाव है जरूरी। लड़की को भगा ले गया युवक, बदला लेने को पूरे परिवार पर किया जानलेवा हमला। और चंडीगढ़ को मिला सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक धरोहर का पुरस्कार। कैपिटल कॉम्प्लेक्स को लेकर किया था आवेदन। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एमसी एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स यूटी चंडीगढ़ का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को सेक्रेटरी पर्सनल एवं सेक्रेटरी विजिलेंस से मिला और यूटी मुलाजमों के लंबे समय से लंबित चली आ रही मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा है। इन लोगों का कहना है कि महंगाई भत्ता जल्द से जल्द रिलीज किया जाए और समान वेतन और समान काम का जो एक्ट है वो लागू किया जाए। इन लोगों का कहना है कि महंगाई बेहिसाब बढ़ गई है, इसलिए डीसी रेट पर जल्द से जल्द 20% की बढ़ोतरी भी की जानी चाहिए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਪਰਸਨਲ ਕਮ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 20% ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 20% ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਰਸੋਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਵ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ समय ਦੇ ਵਿੱਚ एक मीटिंग साध के उन्हें सॉल्व किया जाए। सोमवार को सुबह सेक्टर 52 के एक घर में कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें महिलाओं समेत कुछ लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें सेक्टर 16 के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल हुए रवि ने बताया कि उसका भाई एक लड़की को भगा ले गया था, जिसे वह खुद पकड़कर और ढूंढकर घर लेकर आया था, लेकिन यहां से वह दोबारा फरार हो गया, जिसके कारण लड़की के परिजनों ने उन पर हमला कर दिया है। उसका कहना था कि इसमें पूरे परिवार का कोई दोष नहीं है। बहरहाल पुलिस ने डीडीआर तो दर्ज कर ली है और आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। सेक्टर 52 में आज यानी सोमवार को घर में घुसकर कुछ लोगों ने घर में रहने वाले महिलाओं व युवक से मारपीट की। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर एरिया थाना पुलिस पहुंची और घायलों को तुरंत सेक्टर 16 अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल करवाया। वहीं सेक्टर 52 निवासी घायल रवि ने बताया कि उसका छोटा भाई एक लड़की से दोस्ती करता है, जो पहले भी लड़की के साथ भाग चुका है, जिनको वह खुद ढूंढ कर लाया था, लेकिन वो फिर से भाग गए। घायल रवि ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिसके बाद लड़की के परिजन और अन्य काफी लोग हथियारों सहित उनके घर में जबरन घुसे और उनकी महिलाओं और उनसे मारपीट की। वहीं जांच अधिकारी ने कहा कि चोटें दोनों पक्षों में लगी हुई हैं और दूसरा पक्ष भी अस्पताल में एडमिट है। लड़की वालों ने पहले से ही लड़की को लेकर मौली जागरण थाना में पुलिस ने डीडीआर दर्ज करवा रखी है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
जी का जो शायद भाई है, छोटा भाई, उनकी लड़के को लेके गया हुआ, उनके साथ कैसे उस चीज़ के उन्होंने मौलिक जागरण में इसकी DDR वगैरह दर्ज करवाई थी। तो अभी आपने कितने लोगों को राउंड अप किया है? कुछ लोगों का मेडिकल भी हो रहा है दूसरी पार्टी का, हाँ, अभी 2 आदमियों को हमने किया। तो उन्होंने कुछ बताया तफ्तीश में आपके पास भी किस बात में? नहीं, अभी उनका मेडिकल करवा रहे हैं। उनका मेडिकल किस चीज़ का हो रहा है? उन्हें चोटें लगी उनको भी चोटें लगी? उनको भी चोटें। क्या दोनों पक्ष की तरफ से दो पार्टियां आमने सामने हुई या फिर उन्होंने हमला किया इन पे? नहीं सर, देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। हमारे CCTV कैमरे जो आप कह रहे थे जी, देख रहे हाँ, हैं, हम वो चेक कर रहे हैं सारे, हमारे 107 बीच में लगे हुए हैं। जैसे इसको बहरहाल अब देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 56 में इन दिनों एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। चंडीगढ़ नगर निगम ने वहां पहले एक बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था कि यहां मलबा गिराया जा सकता है। तब लोग यहां मलबा गिराते थे, जिसके कारण सारी ऊबड़ खाबड़ जगह समतल हो गई थी। लेकिन उस बोर्ड के साथ अब एक और बोर्ड लगा दिया गया जिस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहां मलबा गिराए जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने की राशि भी उस बोर्ड में लिखी हुई है। अब एक ही जगह पर दोनों बोर्ड लगे हैं, जिस कारण लोग असमंजस की स्थिति में हैं। इस संबंध में हमने नगर निगम के अधिकारियों से भी बातचीत की, लेकिन वे खुद असमंजस की स्थिति में दिखे। कायदे कानून की पालना करने वाले शहर चंडीगढ़ और इस शहर के नगर निगम का एक और अद्भुत कारनामा देखने को मिला। चंडीगढ़ नगर निगम ने सेक्टर 56 में एक जगह पर बोर्ड लगाया था कि इस जगह पर मलबा गिरा या उठाया जा सकता है। काफी समय तक ये बोर्ड लगा रहा, लेकिन अब उसी के साथ नगर निगम ने एक और बोर्ड लगा दिया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर मलबा गिराया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जुर्माना भी भुगतना होगा। नगर निगम द्वारा लगाए गए इस बोर्ड पर जुर्माने की राशि भी लिखी हुई है। अब एक ही जगह पर लगे 2 नगर निगम द्वारा चेतावनी बोर्ड को देखकर स्थानीय लोग परेशान हैं कि अब यहाँ पर मलबा गिराया जाए या ना गिराया जाए। जब इस बारे में नगर निगम के अधिकारियों से पूछा गया तो वह खुद असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। दोनों बोर्ड्स के नीचे चंडीगढ़ नगर निगम लिखा हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो कार में बैठे लोगों को बताता है कि उनकी टायर की हवा कम है या फिर कोई लीकेज हो रही है। जब चालक गाड़ी से उतरकर टायर देखता है या लीकेज देखता है तो इतने में उनका एक साथी कार का दरवाजा खोल सामान को लेकर फरार हो जाता है। ऐसे ही एक घटना सेक्टर 22 अरोमा होटल के सामने भी घटित हुई, जहां व्यक्ति को इशारा किया गया कि उनके टायर की हवा कम है। जब व्यक्ति गाड़ी से उतरकर टायर देख रहा था तो एक शख्स आया और पीछे का दरवाजा खोलकर बैग लेकर फरार हो गया, जिसमें कुछ नकदी और कीमती सामान था। ट्राई-सिटी चंडीगढ़ में इन दिनों दिन दिहाड़े गाड़ी चालकों को लूटने वाला गिरोह सक्रिय है। ऐसे में अगर आपके पास भी गाड़ी है और गाड़ी में कोई कीमती सामान आपने रखा हुआ है तो फिर सावधान हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कोई आपसे गाड़ी रुकवाए और फिर आपको झांसे में ले आपकी गाड़ी में रखा सामान ले रफू चक्कर हो जाए। तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 22 की हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से इनोवा गाड़ी में बैठी एक व्यक्ति को बहाने से नीचे उतारकर 2 लोग उसकी गाड़ी में रखा बैग लूट कर ले जाते हैं। दरअसल बाहर खड़ा व्यक्ति इनोवा चालक को कुछ कहता है, जिसके बाद गाड़ी में सवार व्यक्ति गाड़ी से निकलकर बोनट और गाड़ी के टायरों को देखने लगता है और इसी दौरान एक दूसरा व्यक्ति गाड़ी का दूसरी साइड का दरवाजा खोलकर गाड़ी में रखा बैग लेकर रफू चक्कर हो जाता है। बता दें कि सिटी ब्यूटीफुल में इस तरह से लूट का ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी कई इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस तरह से लूट के मामले थम नहीं रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि जब भी आप गाड़ी लेकर घर से बाहर निकलें, ऐसे बदमाशों से सावधान रहें। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब विश्वविद्यालय का 69वां दीक्षांत समारोह 6 मई को आयोजित किया जाएगा, जिसमें उपराष्ट्रपति और यूनिवर्सिटियों के चांसलर वेंकैया नायडू मुख्य मेहमान के रूप में शामिल होंगे।
आपको बता दें कि कोविड के कारण 2 साल तक पंजाब विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह नहीं हुआ था, लेकिन अब इस दीक्षांत समारोह को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। पंजाब यूनिवर्सिटी के 69वें दीक्षांत समारोह में यूनिवर्सिटी के चांसलर व देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू विशेष मेहमान के रूप में शिरकत करेंगे। 6 मई को यह समारोह आयोजित किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में जिम्नेजियम हॉल में यह समारोह रखा गया है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण यूनिवर्सिटी में 2 साल से दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया जा रहा था। वहीं स्टूडेंट की पढ़ाई भी ऑनलाइन मोड पर ही चलाई जा रही थी। बीते मार्च में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पाबंदियों को हटाने के बाद से पीयू में ऑफलाइन पढ़ाई फिर से शुरू हुई है, जिसके बाद पीयू ने दीक्षांत समारोह आयोजित करने का फैसला लिया है। इससे पहले यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2019 में अपने 68वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया था। उस दौरान भी देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। उस दौरान कुल 1020 छात्रों को डिग्री दी गई थी। इनमें 493 पीएचडी डिग्री भी शामिल थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। 80,000 रुपए की एक्टिवा के लिए एक शख्स ने 15,44,000 रुपए का वीआईपी नंबर 0001 खरीदा है। यह नंबर उन्होंने अपने बच्चों की जिद पर लिया है। उनका कहना था कि बेशक इतना पैसा उन्होंने इस नंबर पर खर्च कर दिया, लेकिन बच्चों की खुशी के आगे ये पैसा कुछ नहीं है। 80,000 रुपए की एक्टिवा के लिए चंडीगढ़ के एक निवासी ने 15,44,000 का नंबर लिया है। क्या ऐसी क्या खास बात है इस नंबर में, आइए आपको बताते हैं। दरअसल रजिस्टरिंग लाइसेंस अथॉरिटी द्वारा चंडीगढ़ में सीजे सीरीज के नंबर की ऑक्शन की गई, जिसमें CH01 CJ0001 नंबर सबसे महंगा 15,40,000 रुपए का ऑक्शन हुआ, जिसे चंडीगढ़ के सेक्टर 30 निवासी ब्रिजमोहन ने लिया है। ब्रिजमोहन ने बताया कि उन्होंने अपनी एक्टिवा के लिए ये नंबर लिया है और इससे पहले उनके पास इस तरह का कोई भी वीआईपी नंबर नहीं था और ये नंबर उन्होंने बच्चों की जिद पर लिया है। लेकिन एक्टिवा के लिए ही ये नंबर क्यों लिया और इतना महंगा नंबर क्यों लिया, इस पर उनका कहना था कि उन्हें ये वीआईपी नंबर किसी भी हालत में चाहिए था। पहली बार मैंने नंबर अप्लाई किया जी, तो लगा कि हम गाड़ी व्हीकल वगैरह लेते रहते हैं, कुछ एक नया नंबर भी लिया जाए। तो कुछ बच्चे भी डिमांड कर रहे थे कुछ हमारे पास वीआईपी नंबर होना चाहिए, सभी के पास है। पहले मोबाइल नंबर की इन्होंने जिद की तो मैं मोबाइल नंबर भी लिया। तो बस मैं कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं, शायद मिल जाए। तो बड़ी कृपा से और अपना बेट गई है जी 15,44,000 जी। एक्चुअली एक्टिवा अभी फॉर द टाइम बिंग के नंबर मुझे किसी व्हीकल पे लगाना था। बेसिकली वो मैंने कार पे यूज़ करना है। आने दिवाली के आसपास कोई कार प्लान करेंगे, उस पर मैं उसको रिटेन कराऊंगा नंबर को। हाँ, अभी नंबर पहला है। ये गाड़ी तो मेरे पास पहले 2-3 थी, पहले यूज़ कर चुका हूँ। तो अच्छा नंबर है। चंडीगढ़ तो वैसे भी आपको पता है वीआईपी एरिया और नंबर भी अच्छा है। वैसे भी यहाँ पे रूल रेगुलेशन के साथ सभी चलते हैं। चंडीगढ़ की गाड़ी को वैसे भी पूरे इंडिया में कोई मुश्किल से ही हाथ देता है। गौरतलब है कि चंडीगढ़ में इससे पहले भी वीआईपी नंबरों को लेकर लोगों में काफी होड़ रहती है। फैंसी नंबरों की ऑक्शन से विभाग को 1.50 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ को देश भर में यूटी श्रेणी में सांस्कृतिक स्थलों के लिए सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड चंडीगढ़ को कैपिटल कॉम्प्लेक्स के लिए दिया गया है, जो कि यूनेस्को में भी एक धरोहर के रूप में शामिल हो चुका है। यह पुरस्कार स्मार्ट सिटी की सीईओ ने प्राप्त किया है, जो कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने उन्हें दिया है। और मौसम की जानकारी, सोमवार को ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग के अनुसार रात को बूंदाबांदी हो सकती है, जिसके कारण तापमान में कुछ गिरावट आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश की हर खबर और अपने आसपास हो रही हर घटनाओं की जानकारी के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आना को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।